So, of course, there are lots of products which are coming, so people are in their fintech world using in terms of cash flow. Okay, what is that cash flow which is there? Okay, the behavior of that, or the retailers, aging, since how long that company has been in existence. But typically, if you see this line of credit, so banks are only contributing towards 30% of that organized and in the secured loan which is there, right? But still, when it comes to unsecured loan, there is a big challenge there. It's a black hole, right? Later or say, people might be working more on that, how to make that algorithm such that they can, give this credit line to more and more retailers in place. But typically, there are companies who can help there. So for example, marketplace like Amazon or marketplace like us, who understand the user behavior, the retailer's behavior, okay, how they are doing, are they loyal? So there are lots of behavior which is there. So on the basis of that, so lots of technologies are being built. Even for example, trading, we are building a technology how we can help the small businesses to get short-term loans in partner with our NBFCs and all. Okay. So what are the algorithm we are trying to use is how often they are visiting our platform, how often they are ordering our sellers who are been in this business for such a long time. How can we take guarantee in terms of from our sellers that they are selling this product to that particular buyer regularly, and how trustworthy is that buyer? But formal lending is very difficult here in this unorganized sector until and unless these retailers become digital. Once they become digital, then it becomes very, very easy. Okay? But like everybody will have to think that this is a challenge, this is a problem specifically on retail space. Okay? But I just wanted to add few more things here is in India, so we are a small business champion. And as a small business champion, we started this business like digitally 28 years before, and we wanted all these SMEs to go digital. Okay? At that time, there was a reluctance. Okay? But in India, it's all about push. Right? When I say push, demonetization happened, everybody started adopting digital payment. Right? GST happened, all companies started to do formal. Right? COVID happened, everybody said digital. Now we are always everybody talking about digital and digital economy, right? Because it pushed us. यहाँ पर तो अगर problem है आप this is India, okay? So similarly, I believe this will change, and for purposes of the smaller cities, and that's what we have seen the trend in our platform as well, okay? That people, the retailers connecting with manufacturers on our platform has increased by almost 68%. So when I say 68%, it's like, we were getting around almost 3 lakh requirements every day. So it has increased by 6%, 68% per day. Just imagine, the adaptability. Okay? But with that, we did a survey with these retailers, okay, to understand what is that we need. So we just asked 2 questions, okay. One is working capital loan or digital transformation. Any guesses here? So 83% said, we need working capital. So digital is still there, second, option, right? Yeah. So this is the problem, what we do, and of course, the government of India is taking lots of initiatives there in terms of digital India, okay. With this ONDC coming in place, the new initiative, which is like a UPI for, this sailors, where they can use logistics, payment, CRM, all these things at one place. This will be a game changer like UPI, that's what I see, and this will definitely help in terms of digitizing the retail space strategy. What are the biggest challenges you can come in, as far as digitization is concerned? We've talked a lot about digitized Duggal, we've talked a lot about what it entails, but what do you think are the biggest challenges that exist? Look, I think it's a lot of a catch-22 situation. It's a classic catch-22. So, for example, he has 85% asking for working capital loans, but none of them will have, a good chunk of them may not have the income statements, which is the digital super ledger, right? To get those loans, because they would be banking at the cooperative bank, banking at the PSU bank, which doesn't give loans. So bank will say, once you have a turnover more than 1 crore, I will give you a loan. But to make his turnover more than 1 crore, he needs a loan. So that's a classic catch-22 situation that they are in. Solutions are, of course, giving them products which are simple enough for them to utilize. UPI is one of them. I agree with Sandeep that ONDC,
is very promising. It will take a few years for it to really latch on. But I think that will allow more amount of access to information. So for example, we were integrating with GEM Sahai, right, which is the Government of India marketplace. And there is a lot of data over there, right? So we worked with iSpirit and a bunch of those guys, and we saw that there is a lot of information, government departments, government agencies putting orders, so you know the order value, you know who's supplying it, their supply history. Those are kind of ecosystems, which ONDC is basically like, the king of gems in a way. So that coming in obviously allows for more data to be shared, but it is still going to be transactional, right? Like how much did we buy from A platform, B platform, C platform? Still not going to give a full picture of his entire cash flows. You still have, cash has gone up even more in India, 40%. So cash is still king. Still need working capital loans. Solutions are, some of the solutions that Gary talked about are those larger than life, there's this sort of ONDC planet-sized spaceship which comes in and saves everybody. But I think the solution lies, like they were saying, a lot of push. Going to the market, actually talking to people, and then, you start transforming one store at a time, move from there, and I think that's where it is. It's not a simple. Some changes happen after demonetization, some changes happen after pandemic. We don't want another. We don't want another crisis for one more change. No thanks, no thanks. Alright, I think I'm just going to take one last question from each of you, and this is in terms of the interventions that are required. Actually, of course, share data is very good with that. But what are the interventions required at this point in time? We're sort of ending this discussion, this panel, and last word from 6 of you. Big takeaways from the retail Samvad. What interventions are required to ensure a better future for small retailers? Starting with you. Training to those who are executing this small or working on developing entrepreneurial skills in small retails. So not just randomly start something, but to know how and what they are doing and to know how they can scale it up. These are few things which they have never thought about it. They just open it and they just want to survive into it. So if we can train them, we can develop them, and give them that pride that you are contributing. It is not small, it's really very large. That is something which has to be imparted to them, and that's what I would like to add on to this. We should train them to do this. So one part of this change happening has already happened due to this pandemic and everything. One thing it has built up is the connectivity part. Before this pandemic, even if the kind of data, which is the cheapest and India, all over the world and all, that made us, even education, everything is possible. And now even the smallest of the retailers, the smallest of the households, they know how to use it. They all have an access to smartphones. They all have an access. So this thing has already happened. Now how to convert that to take it to another level is something we can actually capitalize on what change has already happened. And to actually capitalize on it, a lot of people are already working in the different units. My ISLP, one is biggest motivation factor is how that digitization would help me. We are training obviously as so this is something will come in, but there has to be concrete thing. It cannot be just hypothetical. Okay, ऐसा होगा तो अच्छा होगा. खराब हमें नहीं होना चाहिए. Not it has to be something smaller goals. ये करने से ये होंगे मेरा 3 महीने में I will be able to do this. या मेरा आज इतना सेल है, इतना सेल में इतना और ऐड है. और मेरी घर ले जाने वाली इनकम इतनी बढ़ जाएगी. If that can be turned into a goal और उसको ये 3 तरीके से ऐसा अचीव होगा, then it seems to be possible. Yeah, so a couple of things from my side, as counterintuitive as it may sound, but I'm looking for more regulations. So I think that if there is anyone in the industry who is spoiling the credit discipline in the country, and they should be penalized. So that's one. Second thing which I am looking for is access to cheaper capital for NBFCs. I think we should celebrate the resilience of small retailers. I mean, they've been fighting
against hypermarkets and supermarkets long before the current circumstances arose. They've gone through COVID, they've done so much. So to support their resilience, what I take away is I'm absolutely persuaded by this end of the spectrum. Get the basics right? Still they need a credit record. They need to get loans. That needs to continue to be pushed even in this high inflation environment that we're going to have to live through. There are certain things which they can certainly do on their own, but the market distorting aspects also need attention. If that is not done, then it's going to be very hard for them. So I believe, everybody we all again talked about digitization. So this is the only way forward. Okay. But we have to understand the retailer's touch point. Where are they? So for example, the first thing what we do is they open a bank account, for example. So it has to be, a policy has to come from the government per se that, hey, now if this is a company who are registered in your bank account, can you start dictating them, teaching them about digitization or about how the digital business happens? Just an intervention there. Okay. So understand all these touch points. For example, GST registered, then that has to give. So all these intervention which is there are few interventions which is there. Bank account, GST, company registration. There might be 5, 6, such touch points which is there. So if these people take that responsibility, okay, that hey, we are going to help you with this knowledge. Okay, we are helping you how to do business. Okay, and it doesn't take much time, basically, because we have done this. We have already helped almost 7 million small businesses in India to go digital. Okay, so if we can do that, why not these agencies who can take that responsibility? And if they do that, ease of doing business in India and the literacy in terms of how to do business online will be very, very easy. That's what Yeah, I think one is of course credit. Cost of credit needs to come down. There is, for example, a Mudra scheme which runs where it doesn't really reach the retailer. So definitely that. Interestingly, there are only out of about 50 crore credit reports or bureau reports in India, out of 140 crores, about 50 crores people have some kind of a bureau footprint. Only about 1.3 crores is any kind of a self-employed business, sole prop, partnership, private limited company. So even if you look at the 6.5 crore MSME, and then you have that's also growing. It's a very small fraction which actually has a bureau footprint and therefore are then eligible for more loans. That's why it seems like there's competition in the MSME space with credit because they're just playing in that small space of 1 crore customers. So definitely a lot more to do in terms of giving access. I agree with Sundeep that accounts, GST, a lot of these places are touch points. Getting them onboarded on some of those things makes a big difference. And yeah, I guess digital, I'm not, it's a very ambiguous term. So I can't really say, go digital. Hello, okay. May I please invite on stage Mr. Pankaj Singh, who is the lead for retail e-commerce safety on stage. It's my privilege to propose the local tax at the closing of this very significant Samvad and a very important topic on the small retail. I appreciate Aditi for choosing this particular topic. In fact, small retail is very important. It does not just provide essential and daily goods and services to households, but it also provides significant livelihoods to a large number. My special thanks to Ms. Sunita Duggal, Member of Parliament, that despite a very busy schedule, she graded to this conference and shared her views with us. Special thanks to all FICCI members and members of the industry and the esteemed speakers, the knowledgeable speakers who shared their thoughts with us.
to associate partner, including amity, who is the knowledge partner. जिस तरह से ये संवाद का जो विषय है ये बहुत दिनों बाद पैंडेमिक के बाद शुरू हुआ है, ये हर एक महीने में इस तरह से बड़े डिस्कशन होने चाहिए। इस डिस्कशन में सर जी जो बातें आई हैं उभर के, तो ये लगा है कि छोटे दुकानदार जो हैं सर उनके लिए बहुत मुश्किलें आई हैं पैंडेमिक में, और अभी भी वो बहुत जूझ रहे हैं क्योंकि कहीं सरकार से भी अभी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और बात करें रूरल एरिया की, तो सर जी रूरल एरिया में किस तरह से ये डेवलप होगा सर? ये अभी इसमें आप ये देखिए, अभी जैसे जो संवाद स्किल संवाद है, तो ये 2 साल पहले हुई, तीसरा ये शायद हुआ। तो ये जैसे पॉलिसीज अब बनाती हैं गवर्नमेंट, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी मुद्दे हमारे डिस्कस होते हैं और जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें चाहिए, अब देश कैसे बढ़ेगी, तो जब तक हमारे आप देखें अर्बन एरिया में तो कितनी पॉपुलेशन है, नो डाउट ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन गांव के अंदर तो सीमित साधन हैं, सीमित चीज़ें हैं। अब पैंडेमिक में आप ये लगाओ कि अगर हमारे जैसे ह्यूमैनिटी और इमोशनल वो नहीं होती बॉन्डिंग, तो पैंडेमिक में जो रिटेलर थे, छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी हेल्प की है गाँव की, सामान लाने में वही वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। अब उनको जैसे बढ़ावा दे रहे हैं, आज के दौर के साथ अगर उनको नहीं जोड़ा गया, उनको मान लो उन्होंने टेक्नोलॉजी उनको नहीं सिखाई गई है उनको, और जो चीज़ें व्यवहार बदल रहा है, प्रोडक्ट बदल रहे हैं, किस किस चीज़ में मतलब जैसे उनको कैसे ग्रो करेंगे। लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड पॉपुलेशंस होती है गाँव के अंदर। अब दुकानें जो है, अगर मान लो एक गाँव में मान लो 40 दुकानें, अभी जैसे वहाँ पर अगर वो और ज़्यादा दुकानें खोलेंगे तो क्या होगा उससे, वो भी एक पर्पज़ नहीं सोल्व होता। उसमें ये है कि भाई थोड़ा वेलफेयर बना के एक कुछ चीज़ों को आपस में व्यवस्थित करें कि भाई ताकि पूरा गांव भी समृद्ध बने और दुकानदार। इसमें जैसे जो गांव के जो दुकानदार हैं उनको जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का पता नहीं होता, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई मुद्रा जैसे लोगों को फैसिलिटीज़ के लिए वो पंचायत का बहुत बड़ा इसमें रोल है, पंचायत का भी है, दूसरा जैसे डीएम का भी है, डीएम का भी है। स्किल वैन बनाए, या जैसे जो बैंक वाले हैं स्किल वैन, जैसे भाई उनको स्किलिंग करें, उनको वहीं पर जाके उनको मतलब कैप्सूल कोर्स कराया जाए कि भाई एक दिन में जैसे उनके साथ में बैठ के उनको ट्रेन करें। गवर्नमेंट जो है यहाँ से बहुत कुछ देती तो है, लेकिन उन तक अवेयरनेस नहीं, उसको मतलब पहुँचाना चाहिए। अब उसमें जैसे थोड़ा उनको गांव में जैसे सबसे पहले गांव में कौन पहुँचता है, शहर की तरफ से पता सबको है कि इस गांव में अभी ये समस्या है या रोड टूट गया है, लेकिन अभी जैसे रोड की सेंस सुधर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, अच्छा मतलब उसमें चल रहा है, लेकिन फिर भी जैसे जो ये स्कीम वगैरह जो है खाली टीवी पे और जैसे व्हाट्सएप पे या इन पे ना जाके उनको थोड़ा समझाना चाहिए। रिटेल की आप बात कर रहे हैं और छोटे जो न्यू सब दुकानदार हैं उनके लिए आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन सर गवर्नमेंट ने जीएसटी जो है वो अभी दूध पे, आटे पे, मुरमुरे इन सब में लगा दिया सर, तो कैसे ये लोग निर्वाह करेंगे और कैसे होगा गुजारा सर? आप ये समझिए जो जैसे जो जीएसटी है और जीएसटी हर उसमें जैसे कैटेगराइज के अनुसार गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया है, आप ये क्यों नहीं देख रहे? अभी तो एक जीएसटी है, पहले हमारे ऊपर कितने टैक्स थे, सेल टैक्स था, चुंगी देनी पड़ती थी, ये था, अब तो एक ही भरना है 2.5% तक हो गया। हाँ, अब जैसे मतलब आप ये लगाइए कि अभी और भी इस पर लेकिन बहुत बड़े व्यापारी लोग जो है, जो व्यापार वर्ग है, वो सब इससे परेशान है। वो परेशान ही हो ना, क्योंकि वो उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, जो बिलिंग करेंगे जीएसटी तो उनको भरना पड़ेगा ना। अभी हमारा क्या है भाई, जैसे हम इनकम टैक्स पे करते हैं भाई उसके स्लैब में, और साथ में हर प्रोडक्ट पे जैसे हम टैक्स दे रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट ने सर जी मतलब जो आटे पे, दूध पे, मुरमुरे पे, छोटी छोटी चीज़ों में जो डेली यूज़ वाली उन सर टैक्स लगाया है, ये क्या सर सही है? नहीं देखो, अगर मान लो आप ये बताइए कि हमारे सारे भाई तो एक जैसे हम चाहते हैं कि चलें, बड़ा लोग तो दे देगा सर, जो आम जनता है, छोटा गरीब है। नहीं, उसमें जैसे जो ऑप्शंस हैं वो आपको जैसे एक बार पूरा जीएसटी का भी नॉलेज, जैसे
उन छोटे दुकानदारों को तो इतना लागू होता नहीं, क्योंकि आपकी सेल कितनी है। अरे भाई 400-500 रुपये डेली के लोग पड़ रहा है, उसका दाल रोटी का मामला चल रहा है, आप GST कहाँ से दोगे? दिक्कत है। तो वो इनकम में आता ही नहीं, वो तो ऑलरेडी GST दे के ही लाया है, बिल काटते नहीं। गांव का कोई आदमी जो है बिल तो लेता ही नहीं। तो इस टाइप के जैसे जो अवेयरनेस सर नए दुकानदार हैं उन पे और जितने भी हमारे छोटे शॉपकीपर बड़े शॉपकीपर हैं उनको मार दिया है मॉल्स, वहाँ पर बाई 1 गेट 2 फ्री इस तरह से है, तो और वो छोटे दुकानदार दे नहीं पाते। तो क्या इस तरह से उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सर? देखिए, इसमें जैसे जो है आप ये लगाइए, हमें यहाँ बदलना होगा। बदलना इन द सेंस, एक गली है, मान लो गांव की गली, अब जी लाला जी ने एक दुकान वहाँ पर चल रही है ऑलरेडी काफ़ी सालों से, 2-4 जो है चौधरियों ने और सेम दुकान खोल ली है। नेचुरली है सर, वो अपने इनकम के लिए कोई सोर्स तो ढूंढेंगे। हाँ, अब आप ये देखिए, अब जो बड़े जो मॉल हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक उसके अंदर सारी चीज़ें लिख दी है। अब उस चीज़ों के अंदर आप ये देखें, क्योंकि जो हमारे गांव के जो छोटे दुकानदार हैं वो सिमिलर टाइप की दुकानें करते हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट ने कितना हो गया लोकल को बेचा, भाई वहाँ की जो स्पेशलिटी है, या मान लो 10 गाँव में कोई ना कोई स्पेशलिटी तो होगी, कोई चीज़ बनती होगी वहाँ। जब लिज्जत जैसी जो है वो अच्छी बात है लोकल, तो उसमें जैसे जो उसमें दुकानदार जो इतना है इनकम नहीं है। नहीं, इनकम नहीं आजकल तो गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, जेंट्स की चीज़ें बेच के, अभी कल का पेपर पढ़ो, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। अवेयरनेस की बहुत अवेयरनेस बहुत ज़रूरी, बहुत कैंपिंग और करना साथ होगा में हमें। आपको टेक्नोलॉजी भी अडोप्ट करनी पड़ेगी, 100%, उनको सिखानी पड़ेगी, और इम्प्लीमेंटेशन तभी हम डिजिटल बन पाएंगे और बना पाएंगे। तभी मतलब तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये सब करना चाहिए। कर रही तो आम जनता के लिए जो खासकर महिला वर्ग जो है उनके लिए कोई मैसेज आप दें, तो जो आपके कहे अनुसार, या सरकार तो दे रही है लेकिन फिर भी मौत टू मौत आप कहेंगे तो उनको समझ आएगी वो बात। देखो, महिलाओं के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जितनी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, माताएँ हैं, जो नया कुछ करना चाहती हैं, जो नया कुछ करना चाहती हैं, अभी आप देखेंगे, अभी ऐसी मैंने चीज़ें देखी हैं। अभी एक मुश्किल में गया था शॉप पे गांव में, तो वो लड़की मेरे को कह रही थी, अंकल जी मैंने है ना शॉप के अंदर फीफो सिस्टम लागू किया हुआ। तो मुझे भी एक सरप्राइज हुआ, अच्छा कि गाँव के अंदर अगर मैनेजमेंट में ये बच्चों की पढ़ाई का इफेक्ट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या जैसे भी उसने, और बोले अंकल जी मैं एक्सपायर होने से पहले ही उस चीज़ को ना बेच देती हूँ। कुछ इंटरनेट से और कुछ अवेयरनेस की बड़ी बात है, बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो इस टाइप की अवेयरनेस अगर माताएं, बहनें और ये जितनी भी नारी शक्ति है हमारी अवेयर रहें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें जी कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल 100%। किसी चीज़ से घबराएं नहीं कि क्या होगा, करके देखेंगे तो सब कुछ हमें पता चलेगा कि हाँ यस हो जाएगी। रूरल एरिया में जो महिलाएं हैं, नए दुकानदार हैं, उनके लिए क्या मैसेज है सर जी? इस तरह के पहले तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों ने पहले ये इनिशिएटिव है। और जो रूरल एरिया में जो महिलाएं हैं उनको मेरे को ये सजेशन है कि आप लोग नए तरीके से बिज़नेस जो आज के डेट में वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी तरह, चाहे वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, पर आप ये देखिए कि आप इनको यूज़ करके जो आप पर्सनली अपने लिए यूज़ करते हैं, इनको अपने बिजनेसेस में कैसे ले सकते हैं और कैसे अपने कंज्यूमर को कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो एक तो ये है पहला। दूसरा कि आप ये देखिए कि आप बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, आज के डेट में सब कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये एक तो टेंजिबल होता है, एक नॉन टेंजिबल होता है, राइट। तो ये इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या एक नॉलेज लेके आना चाहिए कि कैसे हम कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ग्राहकों को आपके पास पहुंचने से पहले आप कैसे उनके पास पहुंच सकते हैं, क्या ऐसा करें कि आप वहां पर पहुंच सकें, क्योंकि जिस तरह के आज के डेट में कॉम्पिटिशन है, तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें में अगर आप ध्यान देंगे तो ऑफकोर्स आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आप नए सोच के साथ जाएंगे। जैसा कि सर बहुत बड़ा जो व्यापारी वर्ग है उनकी कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं और हमने वो अटेंड भी की है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। एक्चुअली वो बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हैं इस GST से, और गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और
वो धरने पे भी जा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया बंद करने की भी, छोटे से दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार। तो जीएसटी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या दूध, दही, मतलब मुरमुरे, आटा, सब पे जो है जीएसटी लगा दिया है, तो आम नागरिक की क्या होगी? जबकि मोदी जी ने कहा था कि रोटी कपड़ा मकान मुफ्त मिलेगा जब मैं सफ्ते ले लूँ। तो सर आप तो तब से 14 से अब तक जो है हिंदुत्व की बात तो है, हिंदुत्व जो है वो तो हम बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र बन रहा है, लेकिन जो छोटा लोग हैं, छोटे छोटे गांव में जो बेचारे गरीब हैं, पेंडेमिक के बाद बहुत बुरी हालत है, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बचें जीएसटी से? गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जीएसटी से राहत दी जाए? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि गवर्नमेंट क्यों कहता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकनॉमी। एक फॉर्मल इकनॉमी तब होता है जब सारे कंट्री के लोग एक ही जगह एक ही चीज़ यूज़ करें, राइट? तो जीएसटी एक ऐसा चीज़ है जिससे सारे बिजनेसेस को एक जगह ला सकते हैं। और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखना। पॉजिटिव ये है कि क्या गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बिजनेसेस, स्मॉल छोटे छोटे बिजनेसेस के ला सकते हैं, तभी ला सकते हैं जब हम सारे स्मॉल बिजनेसेस फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाए, ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जीएसटी के साथ जुड़ेंगे तो आपको जितने भी गवर्नमेंट के फ़ायदे हैं, चाहे वो लोन को लेकर, ये सारे आप अवेल कर सकते हैं। सब्सिडीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेसेस को देती है। तो अगर आप वहाँ पर है ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक प्रॉब्लम एरिया है। मैं कमेंट की दूसरे जो आपका पॉइंट है कि कंज्यूमर जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट में जीएसटी ला रहे हैं, और इसके लिए क्या हम इंडिया को टॉप इकोनॉमी में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? पहला तो ये क्वेश्चन है कि हम लोग को रास्ता चाहिए, हम लोग को अच्छे रास्ते चाहिए, हम लोग को फ्री में मकान चाहिए, हम लोग को ये सारी चीज़ें कैसे होगा? गवर्नमेंट तभी कर पाएगा जब गवर्नमेंट, हम एज ए कंट्री, एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे तरीके से कंट्रीब्यूट बिल्कुल होंगे। और अगर आप ध्यान देंगे गवर्नमेंट उस एंगल से सोच रहा है, फ्री कुछ नहीं होता। सच बताऊँ तो फ्री बिल्कुल आपने कभी, मतलब हर चीज़ फ्री नहीं हो सकता। इफ़ यू सी द डेवलपमेंट इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज देखिए या अदर यूएस देखिए, फ्री नहीं है कुछ भी, ठीक है जी। तो वो भी एक फॉर्मल इकोनॉमी की तरह काम करता है, और वहीं इसी के वजह से ही वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो सेविंग में बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सारे लोग एक जगह एक पॉलिसी के अंदर बंधे हुए हैं, उनको लगता है कि सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट हमारे टेक केयर कर रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस है, हर तरीके से ना बाहर तो सब ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मोदी जी एक तरीके से सारे इस तरह के पॉलिसी चेंज सिक्योर करना चाह रहे हैं, और छोटे छोटे पॉलिसीज़ को लेकर स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप लाकर उनको एक फॉर्मली एक पॉलिसी में हर सिटीजन ऑफ इंडिया को लेकर आना है। सर डिजिटल करेंसी जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जबकि गवर्नमेंट ने 30% लेना शुरू कर दिया है, हिंदुस्तान में 2% जो लोग हैं, जो अवेयरनेस हैं, वो सब क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। तो इंडिया में इसका क्या स्थान रहेगा और क्या आना चाहिए सर? देखिए, टाइम लगेगा। क्या इंडिया को भी एक रिजर्व बैंक से कोई डिजिटल कॉइन लॉन्च करना चाहिए? देखिए, अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे डिजिटल कॉइन का बहुत बेनिफिट भी होगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम उसमें हेरा फेरी नहीं है, ट्रांजेक्शन साफ है, बाहर के देश कर रहे हैं, क्रिप्टो के बैंक खुल चुके हैं, क्रिप्टो के एटीएम खुल चुके हैं, हालांकि जयपुर में भी खुला है। पहले ये देखिए कि ये आया कैसे, ये ना पुराने ज़माने का टेक्नोलॉजी है। तो सच बताऊँ तो पहले क्या होते थे, अगर जब बहुत साल पहले जब हम लोग स्टार्ट किए इंडिया है, बहुत पुराने ज़माने में, वो क्या करते थे, हम बोलते ये ज़मीन, हाँ 1600, हम ये ज़मीन है मेरा, इस ज़मीन के बेसिस में मैं तेरा ज़मीन ले लेता। बिल्कुल 100%। देयर इज़ नो कैश ट्रांजेक्शन कुछ होता था, तो क्या लाइफ जिया नहीं जाता था, तो शायद लाइफ और पीसफुल था, राइट? ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली जब डिमोनेटाइजेशन के बाद पेमेंट आया, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल पेमेंट है, जो हम जितनी भी वॉलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, आज के डेट में मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, अगर वॉलेट भूल जाता हूँ तो मैं उतना डरता नहीं। क्यों? मेरे पास गूगल है, राइट? गूगल में मेरे पास सारे बैंक के ऐप्स है, मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कभी भी किसी भी आसानी से करता हूँ। बड़ा आदमी तो कर रहा है, छोटा भी हो गया है, समझ होगी आज के डेट में। जैसे मैंने बोला कि जैसे रिक्शा वाला है, चाहे वो बोलता है कि कैश नहीं, कोई बात नहीं, पेटीएम कर दो, चाहे ये कर दो, यूपीआई कर दो, गूगल पे कर दो, भीम ऐप। ये जो डिजिटल करेंसी है, ये क्या क्या कॉस्ट सेविंग है। बिल्कुल इन्हें जब जो चाहे वो आप कॉइन निकालते हो या जो आप ये निकालते हो, चाहे कैश निकलते, इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हो रही है। जमाखोरी सब खत्म होगी, कुछ खत्म हो जाएगा। आपको ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पता चल जाएगा, टाइम पे जो
जो ब्लैक टेप जो होता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा ट्रांजैक्शन ए से बी क्या हो रहा है, बी से सी क्या हो रहा है, और इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकता। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी वैसा बनना चाहिए ताकि क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह का बनता है तो उसमें हैकर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होता है, सिक्योरिटी की जो सारी इश्यूज बहुत सारी, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें टेक केयर हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स ए स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्यूचर यही है। आज नहीं होगा बट मे बी इंडिया में 10 साल लग जाएंगे, लेकिन पर होगा। अभी हम इस आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे, मोदी जी से, कि वो 2024 में जब दोबारा आएँ तो डिजिटल करेंसी को डिसेंट्रलाइज करके जो है और उसको आम जनता को पेश करें, जिस तरह से उन्होंने अपने अंदाज में नोटबंदी इस तरह से बहुत से काम किए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू।